ফুলেন্দ্রনাথ রায়। তো আমি এই শিলিগুড়ি নার্সিংহোমে ট্রিটমেন্ট করালাম। আমার অপারেশন হলো, আমার জিভে ক্যান্সার হয়েছিল। তো আমি বাইরে এখানে খবর পেলাম, ডক্টর সপ্তর্ষি স্যারকে দেখালাম। উনি আমার এই স্যার প্রিয়দর্শন স্যারকে রেফার করলেন। প্রিয়দর্শন স্যার আমার অপারেশন করলেন। এখন যে স্টেজে আমার অপারেশন হয়েছে সেখান থেকে এখন আমি অনেক সুস্থ এবং ভালো আছি। বিশেষ করে ডাক্তারবাবু এবং আগে বলতে হয় ডাক্তারবাবুদের খুব সহযোগিতা পেয়েছি, আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করছে। আর এখানকার স্টাফ এবং বিশেষ করে নার্সিং থেকে অফিসিয়াল স্টাফ অমায়িক ব্যবহার, আমাকে খুবই সম্মান করে এবং খুব ভালোভাবেই সহযোগিতা করছে। নিঃসন্দেহে যে কেউ শিলিগুড়ি নার্সিংহোমে ট্রিটমেন্ট করাতে পারে। নমস্কার, আমি ফুলেন্দ্রনাথ রয়ের মেয়ে বলছি। আর আমরা এখানটায় এসেছিলাম যখন প্রথমবার বাবার অ্যাকচুয়ালি ঘা ধরা পড়েছিল জিভের মধ্যে একটা। তো তখন আমরা প্রথমে ইএনটি ডক্টরকে দেখানোর পর তারা বলে একটা বায়োপসি করাতে। তো সেই বায়োপসি রিপোর্টে আসার পর দেখা যায় যে বাবার ক্যান্সার হয়েছে। সেটা প্রথমে তখন ফার্স্ট স্টেজেই ছিল। তো তারপর আমরা এখানে ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে আসি ডক্টর সপ্তর্ষি ঘোষ স্যারের নাম আমরা অনেক জায়গায় শুনেছিলাম যে এখানে এখন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ভালো শিলিগুড়ি নার্সিং হোমে। তো তখন আমরা এখানে এলাম। আসার পর আমরা স্যারের সাথে যখন কনসাল্ট করলাম, স্যার বললেন আমাদের ডক্টর প্রিয়দর্শন কুমার স্যারের সঙ্গে একবার রেফার করতে। আর ডক্টর প্রিয়দর্শন কুমার স্যারের কাছে যাওয়ার পর স্যার সমস্ত রিপোর্টগুলো দেখার পর মানে প্রথমেই যেটা বলবো স্যার সম্পর্কে যে স্যার যেভাবে কথা বললেন আমাদের সাথে এবং সাপোর্ট করলেন, তখনই মনে হলো যে হ্যাঁ, এই জিনিসটা মানে ক্যান্সারেরও একটা মানে ট্রিটমেন্ট হবে। এবং আমরা হয়তো মানে প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু স্যার মানে ভীষণ ভালোভাবেই আমাদেরকে সাপোর্ট করলেন, বোঝালেন যে না কোনো প্রবলেম নেই, তোমরা ট্রিটমেন্ট করো, ট্রিটমেন্ট করলেই এটা বেটার হয়ে যাবে, সমস্যা হবে না। তো তারপর স্যার আমাদেরকে আগের কিছু প্রিভিয়াস কেসও দেখালেন স্যার, মানে যেগুলো ট্রিটমেন্ট করেছিলেন এর আগে। তো সেগুলো দেখার পর আমরা এখানে ট্রিটমেন্ট করানোর ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করলাম যে ঠিক আছে এখানে আমরা ট্রিটমেন্টটা করাবো। তারপর এক সপ্তাহ পর মেবি ডেট দেওয়া হয়েছিল। তারপর এখানে ডক্টর প্রিয়দর্শন কুমার এবং শিলিগুড়ি নার্সিংহোমের আরও যারা রয়েছেন তাদের সাথে মানে টিম মিলে অপারেশন হয় বাবার। আইসিইউতে ছিলেন বাবা, তারপর 2 দিন, দেন 5 দিন নর্মাল বেডেই ছিলেন। তারপর এখান থেকে বাবা যখন মানে ডিসচার্জ হয়ে গেলেন সেই সময় অবধি প্রিয়দর্শন কুমার স্যার, ডক্টর সপ্তর্ষি ঘোষ এবং এখানকার স্টাফরা প্রত্যেকেই ভীষণ ভালোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। এবং তারপর আমরা রেগুলার এখানটায় মানে ট্রিটমেন্টের পর রেগুলার চেক আপের জন্য আসছি। তারপর লাস্ট এমআরআই এবং সিটি স্ক্যানও করা হয়েছে, সেগুলোর রিপোর্টও ডাক্তারবাবুরা দেখেছেন এবং এখন বাবা অনেকটা সুস্থ আছেন, আগের থেকে অনেক ভালো আছেন এখন ডাক্তারবাবুদের সহযোগিতায়। এবং মানে এখানকার স্টাফরাও ভীষণ ভালো বিহেভিয়ার করছে আমাদের সাথে। প্লাস প্রত্যেক পেশেন্টের সাথেই যেটা আমরা দেখেছি, যেটা মেন্টালি সাপোর্টটাও খুব দরকার। শুধু মানে ফিজিক্যাল মানে এখানটা যখন আমরা আসছি তারপর এই মেন্টালি সাপোর্টটাও ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে ভীষণভাবে আমরা পেয়েছি। তো যার জন্য কি পেশেন্টেরও একটা মনের জোর এবং আমাদের পরিবারের লোকেদেরও একটা মনের জোর আসে যে না, আমরা ক্যান্সারের সাথে লড়াই করতে পারবো। তাদের জন্য এটাই বার্তা দেব যে আপনারা প্রথমেই মানে চিকিৎসাটা শুরু করান। যখন সময় থাকতে থাকতে যদি চিকিৎসাটা ঠিক মতন হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই কিন্তু ভালোভাবে সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। এবং এখানে শিলিগুড়ি নার্সিং হোমে আসলে আপনারা কিন্তু অনেক ফ্যাসিলিটি পাবেন, যে যেমন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। আমার বাবার রেডিয়েশনটা হয়েছিল স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেই হয়েছে, অপারেশন হয়েছিল, বাট সেটার জন্য মানে যেটা ট্রিটমেন্টের খরচা লেগেছে বাকি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে রেডিয়েশন এবং এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেই কেমোথেরাপিটাও মানে ফ্রিতেই হয়ে যায়। তো সেগুলো আপনারা এখানে এসে এই সমস্ত সুবিধাগুলো পাবেন। এবং ডাক্তারবাবুদের বিহেভিয়ার তো ভালো রয়েছেই, মেন্টালি সাপোর্টটাও ভীষণ ওনারা সাপোর্ট করছেন।
मैं डॉक्टर प्रियदर्शन कुमार, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, सिलीगुड़ी नर्सिंग होम से बोल रहा हूँ। हम लोग सिलीगुड़ी नर्सिंग होम में काम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक पेशेंट के बारे में बताने के लिए, जिस पेशेंट का नाम है फुलेंद्र नाथ रॉय। ये 67 ईयर ओल्ड मेल है, 67 साल का मेल है। इसके जीभ में कैंसर था। इसके दाएं साइड में जीभ में छोटा सा घाव था। 4-5 महीने से घाव चल रहा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और ठीक नहीं हो रहा था। कई जगह पे इसने इलाज कराया था, ठीक नहीं हो रहा था। तो ये हमारे पास, इसको कहीं से जानकारी मिली, ये हमारे पास आया था। तो हमने इसका जांच वगैरह किया। सब मुझे देख के थोड़ा डाउट हुआ था, तो मैंने जांच वाच हम लोगों ने किया, तो कैंसर आया एंड हमने इसकी सर्जरी की। तो सर्जरी इसकी 5-6 घंटे की सर्जरी चली थी। क्योंकि बहुत बड़ा लीजन भी नहीं था, छोटा लीजन था, जीभ का कैंसर था, यंग पेशेंट था और प्रोफेशनल पेशेंट है, काम करता है, सोसाइटी में रहता है, कई लोगों से बात करता है। तो एक स्पेसिफिक हमारे पास कंसल्टेशन था कि इसका जो मुंह का आवाज़ है और खाना पीना है, कुछ भी ज़्यादा इफेक्टेड ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर थी। तो हमने इसका ट्रीटमेंट किया। सर्जरी में हमने इसका बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कस किए कि सर्जरी के बाद इसको कैसे बनाना है। तो हमने एक स्पेसिफिक प्लान किया। तो इसको पहले जितना ट्यूमर था, अच्छे से ट्यूमर को काटने के बाद, इसका गले का सर्जरी करने के बाद हमने इसके जीभ को एज इट इज क्लोज कर दिया। बाहर से कुछ उस जीभ में नहीं लगाया। तो अभी सर्जरी के बाद 5-6 महीने हो गए हैं। सर्जरी पेशेंट इज वेरी फाइन। सर्जरी के बाद 1-2 दिन ही पेशेंट आईसीयू में रहा। एक दूसरे दिन से ही चलने फिरने लगा, खाने पीने लगा। ट्यूब नाक में डाला हुआ था 10 दिन के लिए। तो ट्यूब से खाने लगा नेक्स्ट डे से, है ना। 10 दिन के बाद पेशेंट आराम से मुंह से ही खाने पीने लगा, बात करने लगा, चलने फिरने लगा। तो अभी पेशेंट बिल्कुल फिट एंड फाइन है। 5-6 महीने सर्जरी के बाद पेशेंट इज डूइंग सो वेल। ही इज टॉकिंग, उसका स्पीच ऑलमोस्ट नॉर्मल है, खाना मुंह से खा रहा है, कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पेशेंट के बारे में हम स्पेसिफिक कंसिडरेशन ये है, हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं कि कहना ये है कि देखिए, हमारे पास हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं। जो छोटा सा ट्यूमर से लेके बहुत एडवांस स्टेज ट्यूमर तक आता है। मुंह के किसी भी हिस्से में ट्यूमर लेकर आता है। जीभ में हो गया, गाल में हो गया, तालू में हो गया, जबड़े में हो गया, है ना, लिप ओठ पे हो गया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्यूमर अलग अलग स्टेज में लेकर आते हैं पेशेंट। तो इस पेशेंट के साथ खासियत ये थी कि देखिए, छोटा ट्यूमर था और पेशेंट तुरंत हमारे पास आ गया। तो हमारे बेनिफिट क्या हुआ कि एक तो कम टाइम में सर्जरी हो गई और बहुत कम मेहनत करना पड़ा। पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी बहुत कम हुआ और उसके बाद पेशेंट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो गया। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को कि देखिए, ट्यूमर को वेट नहीं करना है कि भाई ज़्यादा दिक्कत होगा, दर्द होगा तो हम डॉक्टर के पास आएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, पेशेंट एक्टिव था, इसके घर में सब सारे लोग वर्किंग हैं, काम करने वाले हैं, थोड़ा एडुकेटेड फैमिली है, तो ये लोग जल्दी आ गए। तो जल्दी आने का नतीजा आप देखिए कि पेशेंट कितने अच्छे से, अभी जस्ट 5 घंटे की सर्जरी में ही 2 दिन के आईसीयू स्टे और 4-5 दिन के वार्ड स्टे के बाद ही पेशेंट देखिए अच्छे से खा पी रहा है, बात कर रहा है, चल फिर रहा है, अपना पूरा नेचुरल काम जो पहले करता था वो अभी एज इट इज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिना टाइम वेस्ट किए जितनी जल्दी हमारे पास आइएगा, उतना ज़्यादा हम आपको कुछ वापस दे पाएंगे, है ना। तो इससे आपका खर्चा भी कम होगा और आप बैक टू ऑलमोस्ट नेचुरल लाइफ वापस जा सकते हैं, है ना। तो अभी देखिए, पेशेंट पहले की तरह ही बात कर रहा है, खा पी रहा है, चल फिर रहा है ना। बहुत ज़्यादा ना तो इसको फाइनेंशियल बर्डन आया, ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए, ना बहुत ज़्यादा इसको हॉस्पिटल स्टे हुआ, ना कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, है ना। तो जस्ट आप इस पेशेंट को आपके सामने दिखाने का मतलब टारगेट 2 है। एक तो ये है कि आपको ये बताना है कि अगर आप जितनी जल्दी हमारे पास आएंगे उतना अच्छा हम आपको दे पाएंगे। एक चीज़ ये होगी। दूसरा रीजन ये है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कैंसर का अगर हो भी गया, घाव हो भी गया और उनको डाउट हो भी जाता है कि कैंसर हो गया है, तब भी वो क्या करते हैं कि तुरंत दूसरे मॉडलिटीज में, जैसे कि कुछ भी घर में बैठ के कोई भी इधर उधर की दवा खा के या टाइम वेस्ट करते हैं। तो और जब नहीं संभलता, बहुत बड़ा हो जाता है, तब हमारे पास आते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, एक तो जितनी जल्दी हमारे पास आ गए, हमने ऑपरेशन भी किया, तो देखिए अच्छा ही रिजल्ट मिला ना, अच्छा हो गया। तो आप लेट आते तो क्या होता कि हो सकता था कि पूरा जीव काटना पड़ता, है ना। तो वो भी हमारे पास वैसे भी पेशेंट्स आते हैं, वैसे भी हमारे पेशेंट्स बहुत सारे हैं। अगली बार आपको वो सारे पेशेंट्स भी दिखाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप वेट मत कीजिए और टाइम खराब मत कीजिए, है ना। और दूसरे लोगों में ये अवेयरनेस फैलाइए कि जितनी जल्दी हो सके, कैंसर का सिर्फ आपके पास एक ही इलाज है अभी,
है ना, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो टाइम खराब करके, वेट करके, अननेसेसरी इधर उधर घूम के आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, है ना, सबके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जितनी जल्दी हमारे पास आ जाइएगा, हम उतना आपको अच्छा दे पाएंगे।